सत्य की खोज। नमस्कार, मैं हूं सोनम। आप देख रहे हैं SBN 7 लाइव न्यूज़ मेरठ। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलित एवं सरस्वती वंदना द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निदेशक नी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डॉक्टर अवनीश कुमार वरिष्ठ ने राष्ट्रीय में होने वाले साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही इससे बचने के उपयोगों का जन जन तक किस प्रकार आसानी से पहुंचाया जा सके, इसकी आवश्यकता पर बल दिया। Problems. So let's took a brief look on the problem statements. As you can see on the slides, the problem statements are like that. As you all know, in rural schools, the attendance is still taken manually on paper and pen, using paper and pen, which consumes time, approx 10 to 15 minutes daily, which will mark the attendance. And our model ensures the data safety and security, ensures transparency in attendance, and also centralized dashboard. As we did a dashboard, it is for centralized, for administration, for teachers, and for government also. Next, our target audience: teachers, students, and administration, and also government. Who is the program? For technical level, I would like to call my teammate Kaushal Chauhan. Good morning everyone, I am Kaushal Chauhan and I am here to explain how this thing works. So first of all, when a student enters the class, he just has to tap his ID card on the reader machine and then his attendance will automatically be marked. And for example, this is my ID card. The same ID card which provide to the student. Because RFID cards are similar to the ATM cards, we can convert those cards into ID cards. So that when a student enters the classroom, he just has to tap the machine and the attendance is automatically marked. And the data will be stored in a database. And this data later can be accessed by the teacher, school administration and government also. And now for further details, I will go Divyang. He will explain it. Now for feasibility analysis. Our model is feasible in all the factors, in technical factor, in operational factor, in economical factor. As Arduino machine is basically cost 2,500 to 3,000. So it's not the big amount for the government to operate it. And the RFID card costs approx 10 rupees per card. And in compulsory it may be all reduced. The operation feasibility is easy because the installation of Arduino machine is not a big issue and the infrastructure is also concise to operate. And as we all know, this model is proposed for rural area, so there is no professional technicians are provided there. Therefore, for basic troubleshooting, we train the local school teachers and staff members for basic troubleshooting in the Arduino machines or RFID related problems. Next, please. Our potential challenges we face, as we all know, this model is for rural areas. The main first problem is infrastructure limitation. Therefore, our model is minimal infrastructure based, as we are providing RFID card or Arduino machine. The second one is data security. Data security is, in today's world, data is one of the most valuable money, we can say. For providing security in it, we use many different applications on backend, and this data is stored in both offline mode and online mode. Means if there is no connectivity in rural areas, the data is stored in the Arduino global database. And when the machine got internet connectivity, the data is automatically uploaded to the cloud database. The second one is resistance to change. As you all know that the manual attendance system is going to be from many years, so it will take a little bit challenging for change. So as our card is not a
big issue. Student is always there for students in government school. The RFID card is integrated with student card, and when a student come to school, just tag the card on the card reader and enter the class. The final conclusion I would like to come to: the system is automatic, technically simple, cost efficient, user friendly, legally safe, and time efficient. It is making it highly feasible for rural implementation. Thank you. If anybody have any queries, feel free to ask. So this model is going to be implemented in rural areas, and we know that in rural areas, government schools students up to primary are not enough mature to how to tackle how to handle big machine. So hygiene is one of the main factor. The second one is biometric system. के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो बायोमेट्रिक। आप जॉब लेने के लिए नहीं पढ़ी, आप और पूरे भारत के स्टूडेंट्स के लिए जॉब देने के लिए ऐसा अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो आपको चीजें बताई जाएंगी उन्हें अच्छे से सुनिए, समझिए, और इस कार्यक्रम को अच्छे से डेवलप करने के लिए आप पूर्ण ये मैसेज मेरा आप ध्यान दें। आप यंग हैं, यूथ हैं, आने वाले भविष्य का निर्माण आप लोगों के हाथ में ही है। आज साइबर क्राइम के अंदर हमारे युवा फंसते जा रहे हैं। क्या चीज अच्छी है, क्या गलत है, इससे थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। मैंने एक आर्टिकल्स दिया था, प्लीज हंसिए नहीं, हो सकता है ये चीजें आप लोगों के साथ में भी गुजर रही हो। एक घटना है छोटी सी, एक बच्चे के पास में एक अननोन कॉल आती है, एसएमएस आता है और वो उसे पढ़ता है, वो उससे चैटिंग शुरू करता है। चैटिंग शुरू करने पे साइबर जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उसे किसी ना किसी मेंटलिटी सिस्टम से फंसा दिया जाता है। मतलब एनीवे वीडियो कॉल्स या उससे फंसाने के बाद में उस बच्चे को इतना टॉर्चर कर देते हैं कि मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो बोल रहा हूँ, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ, पुलिस की फोटो से भेज दी, मैं सीआईडी बोल रहा हूँ, मैं यूट्यूब अधिकारी बोल रहा हूँ। तो ब्रेन है, बच्चा है, क्या समझ पा रहा है यार, बहुत गलत कर दिया तुमने, या तो तू इतना पैसा डाल दे या तेरे साथ में कोई ना कोई गलत होगी तो ये पुलिस अरेस्ट कर ले। कई बच्चों ने सुसाइड किया है, समझ रहे हो मेरी बात को आप। इन ऐसी मतलब टॉर्चर भरी कॉल्स, गलत तरीके से मैसेज, और आपको बिल्कुल गलत तरीके से वो सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा कर देते हैं, आप परेशान होकर बच्चा सुसाइड करने को हो जाता है। अगर कोई ऐसी घटना सोशल मीडिया पर आप लोगों के मोबाइल पर आ रही है तो आप अपने मम्मी पापा को शेयर करें, अपने गुरुजी को शेयर करें, या संबंधित थाने में साइबर क्राइम में शेयर करें। तो मैं आपको एक मीडिया के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि आपको जैसी भी कोई समस्या हो, अपने गार्जियन से, अपने गुरु से, उनसे जरूर शेयर करें। आप बच सकते हैं, हो सकते हैं एक बड़े हादसे से बच सकते। ऑलरेडी 2500 रिपोर्टर्स हमारे पास में हैं, और मीडिया में कोई भी व्यक्ति अपना सफल कैरियर बनाना चाहता है तो बिल्कुल वेलकम है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप आज के कार्यक्रम की आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और आप तरक्की करें, अपने कैरियर को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद। Now we request our Honorable Director Sir to come forward. Thank you. Very good morning to all. Respected Chancellor Sir, Pro Chancellor Sir, and Honorable VC Sir, Director IQAC, Dea Ma'am, today's guest, Manoj Kumar Kashyap, Chief Editor SPN, Savit Foundation Head, BAM, or all HODs, deans, and today starts our students. I want to welcome you all in this event, and if you just think so, okay, yes, what is hackathon? Already we have told you about that. Yes, hackathon is that. The hackathon is the collaborative efforts and the teamwork when we are working towards the challenges what our we people have in the society. So, Smart India Hackathon is the initiative taken by the Indian government, and on which they are just asking the students to, yes, if you have any kind of talent in you, you just come on the big platform, and we will provide you the platform, and you just how you solve these issues, whatever you people are facing. जनरली मैं बच्चों को जब बोलता हूँ, यही बोलता हूँ उनको कि
our engineers have the big shoulders and big responsibilities on their shoulders too. समाज में कुरीतियां जो एक वर्ड है जिसको दूर करना है, वो एक सामाजिक संस्था जैसे मैं भी अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उनका भी काम होता है, एक सोसाइटी का काम है। सर का पेपर न्यूज मैं भी डिस्कस कर रहा था उनसे कि आप लोगों का बड़ा दायित्व रहता है जिसमें आप लोग एक इंफॉर्मेशन फ्लो को मेंटेन करते हैं, कुरीतियों को दूर करने में करते हैं। ऐसे ही जो प्रॉब्लम्स हैं जनरली ये कुरीतियां जो हमारे टेक्निकल बैकग्राउंड में आती हैं, इफ यू वांट टू से कि यस वी आर द वर्ल्ड गुरु, बट ऑन दिस बैकग्राउंड वी कांट से we will be and we are able to be that for that, and in future we will cover this slogan, yes we are the Vishnu Guru, but these all the responsibilities are on your shoulders. मैं बोलता हूँ कि our experience and your energy, जो यंग यूथ है अगर हम उसको वो एनर्जी दे पाए जो उनकी एनर्जी को अभी आपने कलेक्ट किया, हमारे एक्सपीरियंस के साथ उसको ऐड करेंगे तो दैट विल बी मेक द गुड प्रोडक्ट एंड इट विल बी गिव अ शाइन। आप लोगों को यही एक चीज करना है हैकाथॉन में, सेम यही है दैट्स द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, द टीम्स ऑन द डिफरेंट बैकग्राउंड। कोई उसमें डेटा में अच्छा होगा, वन इज गुड इन डेवलपमेंट, अनदर वन इज गुड फॉर वेबसाइट, अनदर वन इज गुड फॉर मेकिंग द कंसेप्ट। तो आपको हैकाथॉन में अपने आप को यही प्रूव करना है कि यस वी आर रेडी for the contribution in Smart India and we are ready to cover this जो कुरीतियां एक वर्ड मैं बोल रहा हूँ, the technical faults we people are facing in entire journey when the number of ISRO we are working or maybe the Indian Army is struggling, media is struggling, so the struggle part, the responsibility of engineers. Same आपको SIH के अंदर एक लिस्ट दिया गया है, उसी लिस्ट में से आई थिंक सो कि वी हैड पार्टिसिपेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट। वो प्रॉब्लम वाकई एक कंट्री के लिए एक चैलेंजेस है, राइट? तो कंट्री में जो चैलेंजेस है तो वी नीड टू रिड्यूस दिस, तो दिस आर काइंड ऑफ थिंग्स वी नीड टू कवर। तो आई थिंक सो कि यस यू पीपल हैव दिस पोटेंशियल एंड आई हैव सीन लॉट्स ऑफ फेसेस, दीस आर द गुड फेसेस ऑलरेडी आई हैव सीन इन एंटायर ड्यूरेशन ऑफ देयर जर्नी। तो मैं आपको एक शाबाशी भी दूंगा एंड नए दिल से मैं रेस्पेक्ट भी दूंगा आप लोगों को। यस यू हैव टेकन दिस इनिशिएटिव कि नो सर वी विल डू, एंड इन फ्यूचर जो ये ऑर्गेनाइजिंग टीम है इनका एक है कि व्हेनेवर यू विल सेलेक्ट फॉर दिस हैकाथॉन देन यू विल मूव टू IIT फॉर द बिग प्लेटफॉर्म अगेन। सो फ्रॉम माय साइड थैंक यू वेरी मच एंड lots of best wishes to all the teams and you will achieve the thing whatever you want to achieve today and you will enjoy the day. Thank you very much. विद्या विश्वविद्यालय में दिनांक 19 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार को नवाचार एवं सृजनात्मकता के रूप में एक दिवसीय कार्यक्रम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 का आयोजन किया गया। आयोजन का उद्देश्य मुख्य रूप से इंजीनियर, उद्यमी एवं अन्य सामाजिक अवस्थाओं द्वारा समग्र रूप से समस्याओं का समाधान हेतु नवाचार एवं सृजनात्मकता द्वारा निवारण किया जा विषय रहा। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलित एवं सरस्वती वंदना द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निदेशक नी कॉलेज ऑफ इंजीनियर डॉक्टर अवनीश कुमार वरिष्ठ ने राष्ट्र में होने वाले साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया, साथ ही इससे बचने के उपयोगों का जन जन तक किस प्रकार आसानी से पहुंचाया जा सके इसकी आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कुलाधिपति विद्या विश्वविद्यालय श्री प्रदीप कुमार जैन, प्रतिकुलपति श्री विशाल ने, कुलपति डॉक्टर हिरेन दोषी एवं परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर नेहा दोषी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य सहयोगी श्री मनोज कुमार कश्यप, मुख्य संपादक दैनिक सर्वित भारत समाचार एवं सर्वित फाउंडेशन सचिव श्रीमती बबीता कश्यप रहे। कार्यक्रम के मुख्य सहयोगियों का स्वागत संस्था के निदेशक डॉक्टर अवनीश कुमार वरिष्ठ चिन्ह देकर किया। उक्त नवाचार एवं सृजनात्मकता के कार्यक्रम में सभी टीमों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया एवं दिवसीय कार्यक्रम के अंत में विजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर टीम कोड विजार्ड निम्न सदस्य साहिल सैनी, रीचा आदि। इसी क्रम में द्वितीय स्थान पर द टैकिज वाणी आदि तथा तृतीय स्थान पर
रूटम, गुनगुन आकृति, सोम आदि ने प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन बीटेक तृतीय वर्ष की छात्रा तन्वी चौहान एवं भूमि चौहान ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री पुष्पेंद्र द्विवेदी, डॉक्टर गौरव कुमार, श्री मुकेश कुमार, श्री सचिव सिंघल, श्री निशांत एसोसिएट डीन, नीरज लाल तथा बीटेक तृतीय वर्ष छात्रा आयुष वर्मा, गौरव वर्मा, अपूर्ण रजन सिंह, भूमि चौहान, तन्वी चौहान सभी का सहयोग रहा। अपने समान भाषण में माननीय कुलाधिपति महोदय ने छात्र से सामाजिक समस्या, अच्छे नागरिक, कर्तव्य, ईमानदारी नागरिक बनकर राष्ट्रीय सेवा करने का चयन किया। कार्यक्रम के प्रायोजक मुख्य रूप से प्रेक्षकों, नौकस नेस्लो तथा मीडिया पार्टनर दैनिक सवित भारत समाचार रहे। WPS कार्यक्रम द्वारा संचालित।